वेलकम टू केमिस्ट्री माइंड मैप्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आर लाइक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब होती हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एंड दीज प्रॉपर्टीज़ वेरी along the period and along the ग्रुप में और along the period वेरी करती हैं, या इंक्रीज होती है इनकी वैल्यू या फिर डिक्रीज होती है। कहाँ पे इंक्रीज होती है, कहाँ डिक्रीज होती है, तो इस स्टडी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। कैसे वेरी करती हैं प्रॉपर्टीज़ along the period और along the group in the periodic table। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस से। हाउ वी डिफाइन द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द outermost cell which contain electron. Suppose this is the outermost cell which contain electrons. So atomic radius is distance from the nucleus to the outermost cell which contains electrons. This is defined as atomic radius. Now atomic radius can be further divided into three types. कौन सी three types? First is covalent radius, second is van der Waal radius, and third is metallic radius. Now what is covalent radius? How we define the covalent radius of an atom? We take the example of covalently bonded molecules. For example, chlorine, Cl2 molecule. How Cl2 molecule is formed? Cl has electronic configuration 2, 8 and 7 because its atomic number is 17. Another Cl molecule has electronic configuration 2, 8, 7. Now they require one electron for inert gas configuration, one electron this chlorine atom and one electron this chlorine atom. So these chlorine atom has 7 electrons in their outermost cell. Similarly, this second chlorine atom, 7 electrons in their outermost cell. Now to complete their electronic configuration like the inert gas configuration, they share these single electrons. These 2 electrons are shared by both chlorine atoms and they form covalent bond. जो शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा हमारा वो होगा कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड. For example, this is chlorine, one chlorine, and this is another chlorine atom. So how this is nucleus of this chlorine and this is the nucleus of another chlorine atom. How we define the covalent radius now? Covalent radius is what? यहाँ से यहाँ तक it is 1/2 है किसका? इस डिस्टेंस का, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक के डिस्टेंस का 1/2, दैट इज कोवलेंट रेडियस.
कोवलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे, तो रेडियस कौन सी होगी? कोवलेंट रेडियस। डिफाइन कैसे करेंगे कोवलेंट रेडियस को? कोवलेंट रेडियस इज 1/2 of the distance between nuclei of two covalently bonded atoms. Covalent radius is 1/2 of the distance between the nuclei of two covalently bonded molecules. For example, covalently bonded atoms. For example, chlorine and chlorine, these are bonded by covalent bond. Then 1/2 of this distance nuclei of two atom is defined as the covalent radius. Now we discuss van der Waal radius. Van der Waal, second is van der Waal radius. van der Waal रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर एग्जांपल हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ये हमारे पास आर्गन मॉलिक्यूल है, आर्गन का एटम है सॉरी, और ये दूसरा हमारे पास आर्गन का एटम है और ये नियर बाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इसके न्यूक्लियस से बीच का डिस्टेंस होगा, उसका जो 1/2 होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? van der Waal रेडियस से। van der Waal नाम क्यों है? बिकॉज van der Waal फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस इन नेचर, weak forces, and these exist between the inert gases. For example, argon, their electronic configuration is completely filled, 288. There is no bond exist between the two atoms, so the radius is defined as van der Waal radius. How can we write the definition of van der Waal radius? It is defined as 1/2 of the distance between nuclei of two identical non-bonded isolated atoms. Van der Waal radius is 1/2 of the distance between the nuclei of two identical है, दोनों आर्गन है, नॉन बॉन्डेड, इनके बीच में कोई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आइसोलेटेड एटम्स, दोनों को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये है हमारी van der Waal रेडियस। थर्ड टाइप आती है मेटालिक रेडियस। थर्ड इज metallic radius. How can we define the metallic radius? In case of metallic radius, there exist metal ion and electrons. For example, this is metal ion and this is electron. Metal ion, electron, metal ion, electron, then metal ion, electron, and so on. Similarly here, metal ion, electron, and so on. Then how can we define the metallic radius? Metallic radius is 1/2 of the distance between the two adjacent metal ions. Two adjacent metal ions are this. ये जो डिस्टेंस है इनके न्यूक्लियस का, इसका 1/2, वो क्या होगा? ये 1/2 मेटेलिक रेडियस। So we can define the metallic radius as 1/2 of the distance between the two adjacent metal ions है ये, two adjacent metal ions in the metallic lattice.
तो ये हमने डिस्कस किया 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, दैट इज कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस एंड मेटालिक रेडियस। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें इस रेडियस को तो कैसे करेंगे? सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ा जिसमें सबसे वीक फोर्सेस होंगे। वीक फोर्सेस किसके केस में होते हैं? वैन डर वाल फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? सबसे बड़ी कौन सी होगी? वैन डर वाल रेडियस, देन मेटालिक रेडियस, and in the last covalent radius, because covalent bond is stronger than metal electron interaction. So this is the increasing order of radius of 3 type of atomic radius. Now we discuss the variation of atomic radius along the period and along the group. First we discuss along the period. Variation of atomic radius along the period. अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस टिल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद क्या होगा? थोड़ा इंक्रीज होगा, देन स्लाइट इंक्रीज and then decrease. अगर हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं क्या? एटॉमिक नंबर और वाई एक्सिस पे है हमारा एटॉमिक रेडियस, और हम प्लॉट कर रहे हैं सेकेंड पीरियड के केस में। सेकेंड पीरियड में सबसे पहले कौन आता है? लिथियम, देन बेरिलियम, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन एंड सो ऑन। तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन अलोंग द पीरियड होता है हमारा समवट लाइक दिस। तो यहाँ ग्राफ से हमें पता लग रहा है एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है जब हम पीरियड में मूव करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो एटॉमिक रेडियस हमारी जब हम नाइट्रोजन तक मूव करते हैं तो क्या होती है? डिक्रीज। देन आफ्टर नाइट्रोजन स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस and then decrease in the case of fluorine. Then explanation is why first atomic radius decrease and then slight increase in case of oxygen. जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो कोई भी नो न्यू सेल इज एडिड, नो न्यू सेल इज एडिड and electrons are added in the same cell. For example हमारे पास ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे s electrons 1s2, then another s electrons 2s2, यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन लाई करेंगे। नेक्स्ट सेल में कितने आ सकते हैं? 2 8। इन केस ऑफ लिथियम कितने प्रेजेंट होंगे? थर्ड सेल नहीं आएगी यहाँ पे। दिस इज रॉन्ग, ये वाला नहीं। ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। लिथियम के केस में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो इस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम के केस में कितना हो जाएगा? 4 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे।
बोरोन के केस में 5 होता है, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज न्यूक्लियस, इसको इलेक्ट्रॉन मत समझ लेना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखो इसी सेम सेल में ऐड हो रहे हैं, कोई नई सेल फर्दर इंक्रीज नहीं हो रही है ना। अगर नई सेल इंक्रीज होती तो एटॉमिक रेडियस क्या होती? इंक्रीज हो जाती। और अगर इसी सेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। दे अट्रैक्ट, फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इन केस ऑफ कार्बन, फर्दर मोर अट्रैक्शन। फर्दर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन, फर्दर मोर अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज वी मूव अलोंग द पीरियड। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का अट्रैक्शन विद न्यूक्लियस इंक्रीजेज। सो एटॉमिक रेडियस क्या होती है हमारी? डिक्रीज होती जाती है। जैसे अट्रैक्शन होगा तो ये सेल न्यूक्लियस की तरफ खींचेगी, तो इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? और कम वैल्यू आएगी इसकी, इधर आ जाएगी ये वाली। तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। अगर कोई नई सेल ऐड हो तो क्या होती है? फिर एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज। तो ये तो रीज़न है कि वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। नाउ इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पे एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 1s2 2s2 2p3 3 to 5 to 7। और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कैसे फिल होंगे? अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, all electrons are filled in 3 orbitals, 3p orbitals, px, py and pz, and this configuration is half filled। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के केस में ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। एंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p4। 2p4 के केस में कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का एडिशन? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन्स कम हेयर। नाउ कौन सा फैक्टर काम करेगा यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहाँ पे तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया इन केस ऑफ ऑक्सीजन, तो समवट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपस में? रिपल्सन, ड्यू टू विच एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी? थोड़ी सी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड देन फर्दर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एज इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड more and more. This is the explanation for the period. Now we start the explanation for the group. Variation of atomic radius. Atomic radius along group. ग्रुप में क्या वेरिएशन रहता है एटॉमिक रेडियस का, उसको भी हम ग्राफ से देखेंगे। एक्स एक्सिस शो एटॉमिक नंबर एंड वाई एक्सिस शो एटॉमिक रेडियस। जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एल्कली मेटल का केस लें, कहाँ से स्टार्ट होगा? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। लिथियम के केस में क्या होता है? 1s2 2s1, सोडियम में 3s1 4s1 5s1 6s1। तो क्या होगा? फर्दर मोर एंड मोर सेल्स आर एडिड। थ्री सेल्स, और अगर ज़्यादा सेल ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डिस्टेंस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस पे क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल इंक्रीजेस एज वी मूव अलोंग द पीरियड। सो एटॉमिक रेडियस ऑल्सो इंक्रीजेस। ग्राफ में कैसे शो करेंगे? सपोज दिस इज लिथियम रेडियस, देन सोडियम, देन पोटासियम, then rubidium,
and then cesium. Atomic radius is constantly increasing as we move along the group because new cells are added in each element as we move along the group. This is the explanation for the variation of atomic radius along the group. Now we discuss the ionic radius. Ionic radius is आयनिक रेडियस, जैसा हमें नाम से ही इसके पता लग रहा है रेडियस किसकी होगी, आयन की। आयन कौन सा हो सकता है, कैटायन और एनायन। डिफाइन कैसे करेंगे आयनिक रेडियस को? आयनिक रेडियस इज डिफाइंड एज इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस of the ion, nucleus of ion से up to which it exerts its influence, जहाँ तक हम इसका इन्फ्लुएंस फील कर सकते हैं, exerts its influence। ये है डेफिनेशन आयनिक रेडियस की। अब देखो, अगर कैटायन तो बनता है इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम के केस में हम किसको डिफाइन करेंगे, एटॉमिक रेडियस को। अगर सोडियम Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, लूज करके, तो इसके केस में कौन सी हो जाएगी हमारी, कैटायनिक रेडियस। कैटायनिक रेडियस, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम के पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, दिस इज न्यूक्लियस and this is first cell which contain 2 electrons, and this is next cell which has 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and sodium by losing 1 electron acquire inert gas configuration of neon, नियोन की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। लेकिन सोडियम का देखो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11। इट मीन्स इट हैज़ 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने ही रहते हैं, प्रोटॉन आर 11, बट इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाता है, एक लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 11 प्रोटॉन यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं और आउटसाइड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। एक तो 11 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और एक 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो कौन ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन। दीज आर लेस इन नंबर बिकॉज प्रोटॉन्स आर ग्रेटर इन नंबर, अट्रैक्शन इज मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सो साइज ऑफ कैटायन or radius of cation of sodium positive ion is smaller as compared to sodium atom. So we can say size of cation is always smaller than corresponding atom। कैटायन का साइज हमेशा क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एटम से स्मॉल होता है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस हो जाते हैं लेकिन प्रोटॉन्स क्या रहते हैं, मोर रहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीजेस एंड रेडियस, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एटॉमिक रेडियस से इन केस ऑफ कैटायन। नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ एनायन। फॉर एग्जांपल Cl क्लोरीन एटम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारे पास, 2 8 7 बिकॉज इट कंटेन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। नाउ क्लोरीन, अगर एक एटम इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर दिया जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच करेगी, नोबल गैस दैट इज आर्गन विच इज स्टेबल, प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोरीन चेंज होता है क्लोराइड आयन में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2 8 8 विच इज़ स्टेबल। इन केस ऑफ क्लोराइड आयन देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स
2 8 8 कितने हो जाएंगे 18 एंड प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 17, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे। नाउ 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स, अट्रैक्शन किसका ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है तो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा न्यूक्लियस की तरफ नहीं हो पाएगा। अगर ये मेरा न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक तो इस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, in case of chlorine atom 7 electrons are present, and in case of chloride ion 1 more electron is added in the same cell, so inter electronic repulsion क्या हो जाएगा, increase electronic repulsion भी होगा, और क्या होगा, number of protons क्या हैं, protons are less than electrons, so इसका रिजल्ट क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। सो इन जनरल वी कैन से रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम, कोरस्पॉन्डिंग एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोरस्पॉन्डिंग एटम। अगर एनायन है तो उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर कैटायन है तो उसकी रेडियस कोरस्पॉन्डिंग एटम से कम होगी। तो इनका वेरिएशन कैसे शो कर सकते हैं हम, सबसे ज़्यादा रेडियस किसकी होगी, एनायन के केस में, देन एटम की, एंड देन कैटायन। दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन, एनायन एंड कोरस्पॉन्डिंग एटम। आई थिंक आपको वीडियो समझ आई होगी, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही होगी। Thank you so much for watching.